welcome to dear participants to workshop organized by IIC BBD ITM on World Environment Day 2022. Before proceeding the session, I would like to welcome our Honorable Chief Patrons, Dr. Alka Das Gupta ma'am, Chairperson BBD Education Group, Mr. Viras Sagar Das ji sir, President BBD Education Group, our respected Director sir, Professor Dr. S.S. Chauhan sir, BBD ITM. Now, I would like to welcome our respected eminent speaker, Dr. Shashank Shekhar Mishra sir, who's an environmentalist. He has special interest in the area of air, water, ecology, and biodiversity. He provided consultancy services in the field of environment, that is consent, NOCs, EC from Pollution Control Board, layout from development authorities, mining plans, IT and GIS services, NOC from Central Groundwater Authority, environmental monitoring, more than 500 consent NOCs EC being released from Pollution Control Board, Directorate of Environment. In his supervision, through various originations were worked. More than 20 papers has been published in national and international journals related to environment and ecology and participated in 10 international and 12 national conferences. Sir has written a book named Atmospheric Variation and Climate Change, of which the publication is Bharat Book Publication, Lucknow. He has contribution in one chapter of a book named Geospatial Technology and Smart Cities, Part 2, Urban Ecology and Disaster Management, of which Chapter 19 is Selection of Suitable Site for Biomedical Waste Disposal in Lucknow City. India using remote sensing data, GIS, and AHP method, of which the publication is Springer, the Urban Book Series. Sir has been awarded the letter of appreciation by Director General Rameshwaram Institute of Technology and Management in 2021 for guest speaker for Electrical Tech Fest under Electrical Tarang 2.0. Paryavaran Premi Saman 2017 by Prakriti Avam Adhyatma Vigyan Shodh Sansthan, Lucknow. Honored by Yadav Sangh Mumbai in 1995 in the field of education. That was a brief introduction of our respected eminent speaker. And now I would like to welcome our faculty coordinator, Dr. Preeti Mishra ma'am, IIC President, Dr. Abhimanyu Kumar Yadav sir, IIC Convener, Assistant Professor Vinay Kumar Yadav sir, President EDC. Now, I would like to hand over the mic to our respected Dr. Preeti Mishra ma'am to welcome our eminent speaker. Over to you, ma'am. Thank you, Avinash. First of all, a very good morning and warm welcome to all and one present here on behalf of IIC. I, Dr. Preeti Mishra, as convener of IIC BBD ITM, extend a warm welcome and heartfelt gratitude to the Honorable Chairperson, Ma'am, Mrs. Alka Das Gupta ji, and Shri Viras Sagar Das ji, President BBD EG Group. And a warm welcome to all the participants, faculty members, IIC members, student coordinators who have spared their time to make this program a success. It is a matter of great pride that we all are present here to celebrate the World Environment Day, which is celebrated on 5th of June. And now I owe a very warm welcome to our guest speaker, Dr. Shashank Shekhar ji. He has a versatile knowledge in the field of environment, and he better understands the connectivity between the industry and environment. And in the same note, he is going to enlighten us with green and refreshing journey on human and environment. Very good morning, sir. As we know, today is the Environment Day, World Environment Day. So human has been living on the earth from a long time, and not only human being but also the earth is place for all types of creatures we can think of, be it bird, animal, insects, even the bacteria, fungi, whatever we study, they all are living on the earth. It is a home place for everyone, and we all of live together. We create an ecosystem
in which everyone has a specific and important role. And if we are not playing that role, this environment is going to be destroyed with the imbalance created. So the world environment it emphasizes on the role of plant and trees. This World Environment Day is especially for the conservation of plant and trees and enhancing, or you can say explaining their role in the ecosystem, which is very much important, because we as a human being, even all the insects and animals, we are very much dependent on the environment. We are having from oxygen to the eatable fruits, vegetables, even the raw material for industry, everything we are getting from this mother nature, this environment. So we can say that environment can live without, can't, can live without us, but as a human being, we cannot live without environment. And this Yes. is the truth of this word, which we should realize. So for the same realization and understanding, we are celebrating this World Environment Day. So now, sir, I welcome you to take over the dice and to take us on the journey of environment. Good morning, sir. Now you can start, sir. Lots of thanks, Preeti ma'am. And first of all, I'm also thankful to Mrs. Alka Das ji, Chairperson BPD, and Mr. Viraj Sagar ji for giving me opportunity for me, a small worker who is doing a small job for the Mother Earth to protect it from the various pollution level and various means various enemies. I can say that various enemies, because as an human we can't understand the environment without knowing the Mother Earth. And also I'm thankful to other coordinators who gave me opportunity to deliver my knowledge what I have gained in last 22 years. And also thankful to Mr. B.B. Tiwari, who has suggested my name to this renowned institute, that just call to him and make a lecture on a special day. And an environmentalist. I'm means lots of thanks to you also. I hope, can I speak in Hindi? Yes, sir. If you Yes, allow. sir. Yes, sir. Okay. No issues. तो मैं ऐसा इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत से अरे स्टूडेंट्स हैं जो शायद उनको मतलब इन्वायरमेंट को समझने में शायद मतलब जो टेक्निकल टर्म्स हैं शायद प्रॉब्लम हो, या मैं चाहता हूं कि मेरी बातें या जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उन तक पहुंचे, और तभी मेरी बातों का अर्थ निकलेगा। अन्यथा बहुत सारे टेक्निकल लेक्चर, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते आ रही हैं, और 50 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई थी 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम में, जहां पर कि तब भी हम मदर अर्थ के लिए ये स्टार्ट किए थे, और आज फिर वापस 50 साल बाद हमें फिर वही डे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। और आज अगर हम ये डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम शायद कोई और डे सेलिब्रेट ना कर पाए। और उसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपका कोरोना काल। पिछला दो वर्ष जो बीता है कोरोना ने, शायद ही कोई त्योहार किसी ने मतलब खुशियों के साथ मनाया हो। बहुत से घरों ने, बहुत से परिवारों ने अपनों को खोया है इस कोरोना ने, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर नॉट मींस कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट। और इस साल का जो थीम भी है, 2022 का जो थीम है, जो यूनाइटेड नेशन ने जो दिया है, और वो थीम है हमारा मदर अर्थ वन अर्थ। मींस कि हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी मतलब अपने
अपने दिनचर्या में शामिल करें, वो सारा कुछ हमारा मदर अर्थ के लिए होना चाहिए। और शुरुआत ही हमारे यहाँ संस्कृति भी रही है जिसको कि हम लोगों ने भुला दिया है। शायद शुरुआत में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, जैसे एक एक मतलब एक मंत्र, एक स्लोगन, एक शुरुआत होती है, कराग्र बस्ते लक्ष्मी कर्णमूले सरस्वती कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। दूसरा ही उसके बाद दिन आंख खोलने से बाद ही दूसरा मंत्र आता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श चमस्मे। जहाँ की संस्कृति ऐसी हो, जहाँ की विचारधारा ऐसी हो कि जहाँ की हम पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उसको प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और उस संस्कृति में आज हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। बहुत ही दुख होता है, बहुत ही तकलीफ होती है। हमें अपने आप को, हम जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट हम कुछ कर नहीं पाए उस समय, तो जो कोरोना काल बीत रहा है, हम केवल जागरूकता। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, शायद हो, मतलब जानना भी चाहिए कि इस साल की जो स्वीडन इसको होस्ट कर रहा है, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, जो कि 1972 में जब स्टार्ट हुआ था, और आज के जो 50 साल बाद, वो सिर्फ इन्हीं सब बातों को लेकर मतलब हो रहा है कि हम अपने मदर अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे किस तरीके से करें। छोटा सा एक भारत के अपने एफर्ट्स को आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि मेरे पास तो वैसे पीपीटी भी है, मैं अगर स्क्रीन शेयर कर सकूं, एक सेकंड। ये सर आप शेयर कर सकते हैं सर इसमें हाँ सुनिए, हाँ मैं एक सेकंड। मैं कोशिश करता हूँ, फिलहाल मैं तब तक समय ज्यादा नहीं लूंगा आप लोगों का। हाँ सुनिए, डेस्कटॉप है। हाँ, शेयर हुआ? यस सर। या सर, तो जैसा कि मैं बता रहा था, सॉरी थोड़ा सा, मैं बहुत ही टेक्नोक्रेट नहीं हूँ। बहुत ही मेरे सहयोगी हैं जो कि मुझे शायद मतलब इस विधा में पारंगत किए। और तकलीफ भी हो रही है कि जो इंटरेक्शन शायद मैं सामने आकर आप लोगों को बता सकता, जो मेरी नॉलेज है, जो 20 सालों में मैंने गेन किया है, जो एक्सपीरियंस रहा है, अनफॉर्चुनेटली कोरोना ने शायद मौका भी दिया कि इतने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ सका, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि वो फीलिंग नहीं आ पाती है जो आनी चाहिए, जो एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, आई कांटेक्ट होता है, वो नहीं हो पाता है इस टेक्निकल युग में। लेकिन फिर भी आप लोगों से बहुत ही मतलब शेयर करना, लास्ट मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें मतलब बचा के रखने चाहिए। और उसमें से चाहे वो आपका लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो, और फ्लोरा, फाना, माइक्रोब्स, और शायद ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। तो और मुझे जहाँ तक प्रीति मैम आपने जैसा शेयर किया है कि सभी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं,
ज्यादातर। तो मैं बहुत ही उन सब के टेक्निकल एस्पेक्ट पे ना जाके मैं सिर्फ डायरेक्टली आप लोगों को उस ह्यूमन इंटरेक्शन और उस पर ले जाना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करने की नौबत ही क्यों आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बाकी जैसे त्योहार मनाते हैं उस तरीके से चल रहे होते हैं और अपने नेचर के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम बिना इन्वायरमेंट के तो हमारी एग्जिस्टेंस हो सकती है, बिना हम मतलब बिना इन्वायरमेंट के हमारी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, लेकिन हमारे बगैर इन्वायरमेंट रह सकता है। आपके कहने का आशय यही था कि हम अगर रहे न रहे, भाई इन्वायरमेंट यदि रहेगा तो आगे भी इन्वायरमेंट सस्टेन करेगा। मेरा इसके अलावा ये भी कहना है कि भारत देश ने जो प्रगति करी है इसमें, खास करके जो जब स्टॉकहोम में ये बातें आई थी मतलब 1972 में, तो फर्स्ट जो एक्ट बना था जो भारत सरकार ने बनाया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, जीवों के संरक्षण के लिए बनाया था। और वाइल्ड लाइफ में जितने भी जीव जंतु रहते हैं जिनसे कि हमारा एग्जिस्टेंस होता है, जिनसे कि हमारी इकोसिस्टम पूरा बैलेंस होता है, और ये सारा बैलेंस उसकी वजह से हम आज सरवाइव करते चले आ रहे हैं। और शायद हम कोरोना से यदि आप बचे हुए हैं और शायद हमारे ऊपर बहुत ही असर नहीं पड़ा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की सोच और उसके अच्छे नीयत का ही परिणाम था। और साथ ही साथ हमारे यहाँ की संस्कृति का भी बड़ा योगदान मैं मानता हूँ कि उन्होंने हमें उस संस्कृति ने हमें मौका दिया हुआ है। हम अपने बहुत सारे हमारे यहाँ रिचुअल्स हैं, छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जो कि हमें बचा के रखते हैं। दूसरा, एक 1974 में एक एक्ट और आता है जिनसे कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर ही था, खास करके वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर एक्ट 1974। उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली बहुत सारे एक्ट आने लगे। फिर 1981 में एयर एक्ट आया, और लैंडमार्क मतलब मैं मानता हूँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, जिसने कि जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो हमारी सड़क बन रही हो, चाहे हमारे टाउनशिप बन रही हो, चाहे हमारे कोई हाई राइज बिल्डिंग बन रही हो, कोई भी नई उसने शेड्यूल 1 में कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, खास करके उसमें 30 से 35 इंडस्ट्री हैं, जिसमें कि उनको बचाने के लिए हमें मतलब एक तरीके से उन इंडस्ट्रीज को बचाने मतलब उसका दुष्परिणाम हमारी जनता को ना मिले, हमारी पॉपुलेशन को ना भुगतना पड़े। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने काफी मेजर रोल प्ले किया और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और फाइनली इन 2006 AIA नोटिफिकेशन आता है, और आज की डेट में हम बाउंड हैं कोई भी एक्टिविटी करने से पहले प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना जरूरी है। ये हो गई हमारी लीगल एस्पेक्ट जिनसे कि हम बाउंड हैं आज की डेट में। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई सारे वायलेशन के केसेस होते हैं। कुछ लोग अभी भी उसमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को। और मतलब शायद मैं इसमें बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आप जैसे यंगस्टर्स जो कि इन बातों को सुन रहे हैं, खास करके MBA के स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो मैं सभी के बारे में तो नहीं जानता, बट एज पर प्रीति मैम जो मुझे बताई थी कि जो शायद ऑडियंस जो है हमारी जो सुन रही है वो यही है कि वो हमारी ऑडियंस जो है, एक सेकंड, यस सर, मैनेजमेंट स्टूडेंट है सर, मैनेजमेंट के हैं। तो सर मैडम इनके लिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, और इनके ऊपर एक की फैक्टर मतलब एक तरह की रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है, और जिनमें कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो बनाया जाता है किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, तो इनके ऊपर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिलता है। शायद ये आगे फ्यूचर में पाएंगे भी, और जब ज्वाइन करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में हम लोग एज एन इन्वायरमेंट कंसल्टेंट या जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनके सजेशंस होते हैं, खास करके एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज और इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसमें कई सारे हम लोगों ने
सजेशंस दे रखे होते हैं कि मतलब कैसे आप अपनी इस जो जैसे सपोज दैट आप किसी टाउनशिप डेवलपमेंट में कोई मैनेजर है, इस मतलब एक तरीके से एक सीनियर पोजीशन पे वहां पे बैठा हुआ है, तो वो डिसीजन मेकर होता है, वो उसको पता होता है, मतलब उसी EIA नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आप एयर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वाटर को कैसे बचा सकते हैं खास करके। और फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे रोड डस्ट इमिशन होगा, तो एट दैट टाइम अगर रोड डस्ट इमिशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्प्रिंकलिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है कि अब चाहे तो ये करें ना करें। ये तो अगर कॉस्ट कटिंग करते हैं तो उसमें ये आती है कि भाई क्या जरूरत है 2 टैंकर पानी वहां छिड़काव करने की, धूल उड़ रही है उड़ने दो। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में PM10 2.5 की वैल्यू बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली आप लोगों ने देखा होगा कि ठंड के समय में धुंध छा जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। उनके एरोसोल्स वो एटमॉस्फेयर में कंडेंस होकर और वो लोअर सरफेस पे दिखाई देते हैं। वो भयावह स्थिति दिल्ली के पॉपुलेशन से पूछे तो समझ में आएगी। अभी हम लोग बहुत ही अच्छी जगह। और सबसे बड़ी बात, वाटर के मैनेजमेंट को लेके भी बातें कही जाती हैं, वाटर प्रोटेक्शन को लेके बातें उसमें रिपोर्ट्स में रहती हैं। और वाटर की इम्पोर्टेंस चेन्नई से आज की डेट में पूछा हुआ है। मुझे बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि चेन्नई आया, आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा, चेन्नई एक ऐसा राज्य बना मतलब सिटी है जहां पे कि आज की डेट में ग्राउंड वाटर में पानी नहीं। बहुत ही मतलब ये हमारे लिए शर्म की बात है, जहाँ पे कि गंगा यमुना इतनी सारी नदियां हैं, सारी सब कुछ होने के बाद हम अतिदोहन करते जा रहे हैं पानी का। इतना इस तरीके से प्रदूषण फैलाया दिए हैं कि हमें स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और हम सरकार को दोष देंगे। हमारी खुद की एक्टिविटी ऐसी हो गई है कि हम उस पर आ नहीं पा रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम तो एक अपना एक जीवन काल अपना बिता चुके हैं 40 से, सभी 45 प्लस हैं। बट सभी जो यंगस्टर्स, जो बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं, आप लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि आप आने वाले समय में अपने मन में ये दृढ़ता था मतलब ले आए और अपने आप को इस तरीके से ढालें कि डे टू डे लाइफ में आप इस चीज को करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में अपने को आप जो है बचा सके। मैं ये मतलब ज्यादा तो नहीं, बस इतना कहना चाहूंगा कि जहां तक हो सके अर्थ को बचाइए। अर्थ बचेगा तो हम सब बचेंगे, और खास करके उसमें एनवायरमेंट, मतलब अन्यथा कोई दवा काम नहीं आती है। ऑक्सीजन के लिए तड़पते हैं लोग। पिछला दो साल बीता है ना, वो हम जैसों के मतलब जो भी जागरूक व्यक्ति होगा वो हिल गया कि कैसे बचा जाए, किस तरीके, कौन सी टेक्नोलॉजी लाई जाए, लोगों के मन में और कौन सा क्या भाव आए ताकि लोग सुने इसको, कुछ देख सके। तो मेरा आपसे, आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने को मनाइए, और ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने जन्मदिन पर या अपने अपनों के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए, जिससे कि हम ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में है, वो बढ़ता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो। टेक्निकलिटी में मैं प्रीति मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी एक स्पेशल लेक्चर अलग से रखिएगा, ताकि मैं अलग एक क्या 2-4 लेक्चर कम भी पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है, क्योंकि एक चीज को छुएंगे तो उससे 4 और चीजें को रिलेट हो जाती हैं। तो मैं आपसे मतलब ये भी कहूंगा कि मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करना चाहता हूँ। और इसकी थीम भी है, आज की जो हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वन अर्थ, और पीछे का जो बैकग्राउंड है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अवेयरनेस कर सके। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पुनः मुझे मौका दीजिएगा कि आज तो मैं एक मतलब इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा लेक्चर पूरा अटेंड कर पाऊं या मतलब ले सकूं, आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। बट
इन फ्यूचर जब भी मुझे आप बुलाएंगी, मैं चाहे ऑनलाइन सेशन लेना चाहे ऑफलाइन, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऑफलाइन लीजिए ताकि मैं अपने चीजों को बेहतर तरीके से आप लोगों को और बता सकूंगा। फिर भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो आज सभी कि आने वाले समय में अपने जन्मदिन पर हम एटलीस्ट एक पेड़ लगाएं, ताकि हम पूरे जीवन काल में कितने पेड़ लगा चुके होंगे। दूसरा, जहां तक हो सके पानी का कम से कम यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, हम उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा बिजली की बचत जहां तक हो सके कम से कम, जैसे पहले का एटमोस्फेयर, ज्यादा से ज्यादा अपने कामों को हम दिन के टाइम पे, बस स्टूडेंट्स को खास करके ध्यान करके मतलब और बताना चाहता हूँ कि बच्चे जो है अपनी मतलब लाइफ को मोबाइल से थोड़ा सा दूर करें। मोबाइल मैं इसलिए कह रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ इस शब्द को, शायद कुछ बच्चों को मेरी बातें समझ में ना आए। उनका कंसंट्रेशन लेवल एकदम डिस्ट्रैक्ट होता है अगर मोबाइल का ज्यादा यूज करेंगे तो, और जब आपका कंसंट्रेशन लेवल डिस्ट्रैक्ट करेगा तो आप भी डिस्ट्रैक्ट होंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो भी एक हजार्ड है, वो भी एक आगे आने वाले समय में। हाँ, एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट हम तो जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा हजार्ड है। उससे जितना बच सकते हैं हम बचें। जितने हमारे मतलब ओल्ड जैसे होता है ना, हम वापस पुराने, आज की डेट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की यूज की वजह से हम कुछ भी खा रहे हैं वो हमें प्रॉब्लम ही कर रहा है। तो हम जहां तक हो सके उससे बचे। तो मैं इन्हीं तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। और आप लोग तो एज ए मतलब फ्यूचर के मैनेजर हो, आप मैनेजमेंट बेहतर जानते हो। मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूंगा, और खास करके सिर्फ इसलिए और भी ताकि आप लोगों से भी कुछ सीख सकूं। और मेरा आप लोगों को खुला आमंत्रण है, कभी ऑफिस आए, कभी आप हमारे यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। कोई इंटर्नशिप करना चाहे, ट्रेनिंग करना चाहे, वेलकम है उन सभी बच्चों का जो लोग भी इंटरेस्टेड हो। और मैं चाहूंगा कि आप इंटरेस्ट लें, नहीं लेंगे तो आज आप तो हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियंस, उन्होंने इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं ध्यान रखा। आप भी ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी, आपके बच्चे भी बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट में सांस ले सकेंगे। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मतलब यही घूम फिर रहे हैं। तो निवेदन है आप सभी बच्चों से, आप सभी लोगों से, जो भी जहां तक भी मेरी बात पहुंच रही है, जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज सेव आवर अर्थ। हमारी माँ है वो, अगर उसको हम बचा लेंगे तो हम बचे रहेंगे, अगर माँ नहीं बचेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। बस इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः मैं प्रीति मैम आपको दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया, और खास करके चेयरपर्सन मैम का, जिन्होंने इस तरीके की आपके यहाँ ऐसी सोच, ऐसी मतलब उनकी सोच को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसा अपने इसे यहाँ अपनी व्यवस्था दी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने की सोची, और उसमें आप लोगों का सब योगदान रहा है। और मैं एक तुच्छ सा व्यक्ति जो जिसमें कि अपने को मानता हूँ, और मुझे आप लोगों ने मौका दिया है उसके लिए फिर से पुनः एक बार आभार और धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने बिजी शेड्यूल में सर हम लोग के लिए समय निकाला। असल में सर के आज जो है एनवायरमेंट डे होने की वजह से सर के कई चैनल्स पे अभी उनको जो है जाना है डिबेट के लिए, और सर के अपने प्रोग्राम्स हैं, तो सर के पास टाइम नहीं था, बट सर ने हम लोग को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम बिल्कुल सर एक क्या कहते हैं भविष्य में एक ऐसा अपना प्रोग्राम रखेंगे सर ऑफलाइन, हम बच्चों को इंटरैक्ट आपसे जरूर कराएंगे। और ये जैसे क्या कहते हैं अभी हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही सर, वो परीक्षाएं संपन्न हो जाए तो उसके बाद फिर है ना एक ऑफलाइन रखेंगे। और ये भी सर सही है कि बच्चे अगर एनवायरमेंट जैसी चीज पर उसके टेक्निकल उसमें जा करके इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, तो मुझे लगता है भी आने वाले समय में सरकारें भी, आजकल सरकार भी दो ही चीजों पे बहुत फोकस कर रही है, एक है स्टार्टअप, दूसरा है एनवायरमेंट। यस यही दो चीजों पे सरकार फोकस कर रही है, उसको और बहुत सारी चीजों में इतनी रुचि नहीं है। सर स्टार्टअप हो,
स्टार्टअप आपका सर्विस में हो, प्रोडक्ट में हो, टेक्निकल उसमें हो, साइंस में हो, रिसर्च में हो। और दूसरी चीज है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए तो कितनी मतलब सिर्फ राज्य स्तर या राष्ट्र स्तर की नहीं, विश्व स्तर की कितने तरह संस्थाएं बनाई गई हैं, जी जी काम कर रही हैं। कार्बन क्रेडिट, कार्बन डेटिंग, सॉरी कार्बन ट्रेडिंग, बहुत सारी चीजें हैं जी जो मतलब मुझे लगता है इन बच्चों को आने वाले समय में इसमें भी जाना चाहिए और इसमें भी समझना चाहिए, और इसमें मतलब बहुत अच्छा इंटरेस्ट करियर हो सकता है एज एन बहुत एनवायरमेंटलिस्ट। मैं आपके सामने हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, बहुत स्मॉल था, इन्वायरमेंट का इतना फोकस नहीं था, लोग अवेयर भी बता आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले। लेकिन बट आज की डेट में मतलब मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा कोई करियर नहीं होता, क्योंकि आप अर्निंग के साथ साथ आप कुछ अच्छा करते हो, कुछ सोचते हो कि नहीं यार ये करने से मेरा इन्वायरमेंट सुधर रहा है। मेरी छोटी छोटी एक्टिविटी, जो सजेशंस मैं इंडस्ट्री को देता हूँ, एपीसीएस को लेके, खासकर एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हो, चाहे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, जो भी जो सजेशंस होते हैं उसका बड़ा असर पड़ता है। तो और सर एक मेरा चीज और अपना मैंने नोटिस की भी, आजकल जैसे पहले लोग बहुत गार्डनिंग का शौक नहीं रखते थे, जी धीरे जी धीरे जी इस समय गार्डनिंग का शौक लोगों का बहुत बढ़ रहा है। अगर कोई इसको नोटिस करे तो आपको जी हर थोड़ी देर पे एक जो है वो क्या कहते हैं, जो नर्सरी रखते नहीं मिली। बहुत, हाँ, नर्सरी मिलेगी। और लोगों के पास जितना स्पेस है, वर्टिकल गार्डनिंग कर, कितने तरह की गार्डनिंग एक है, मैंने सर देखा एक हाइड्रोपोनिक्स अभी नया आ रहा है जिसमें आपको वाटर की क्या कहते हैं, वाटर पे ही सारा चल रहा है। और तो मतलब जी इतनी जी सारी चीजें हैं, इतना सारा लोग काम भी कर रहे हैं। और जो हमारा आने वाला समय है वो शायद एनवायरमेंट और उससे रिलेटेड जो बिजनेस होंगे इसी पर केंद्रित भी होगा। एग्जैक्टली, मैं और ये बिजनेस जो है पॉइंट एक ऑफ बहुत बड़ा मतलब ये अपने आप में एनवायरमेंट और उससे रिलेटेड चीजें, उससे मुद्दे, इश्यूज, सब कुछ एक मतलब अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। क्योंकि या डेफिनेटली हमारा एग्जिस्टेंस तभी है जब पर्यावरण है, पर्यावरण नहीं है तो फिर हम भी नहीं है, कि हम तो बिना यस ऑक्सीजन के रह नहीं सकते। नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं, मैं पॉसिबल ही नहीं है। और कहाँ कोई रह पाए बताइए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन खेलते रहे सब, सरकार के ऊपर जी हाँ एक सर, दूसरे जी के हाँ। ऊपर लगाते रहे। और जो लोग व्यक्ति जो गांव में रहे वो बचे रहे। हम शहरों में रहने वाले लोग, मैंने अपनों को खोया है, मेरा बहुत ही करीबी मुझसे बिछड़ा है, नहीं मुझे सर, बहुत अभी तकलीफ है। जितने हैं हमारे बहुत सारे फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं यहाँ पर, सभी जी लोगों ने पिछला वर्ष देखा था जो सभी के लिए बहुत भारी था। सभी ने, सभी का, सभी का तो नहीं लेकिन कुछ लोगों का तो बहुत कुछ खोया है। और इससे हम लोग को सीखना भी चाहिए कि पर्यावरण वास्तव में कितना इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट। पर हाँ, पर्यावरण अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सर हम हमारी तरफ से, पूरे आईआईसी की तरफ से और इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने सर समय निकाला इतने हेक्टिक शेड्यूल में हमारे लिए। और हमारी तरफ से सर अब आप एकदम फ्री हैं, आप अपना जो है थैंक यू आगे जा सकते हैं। थैंक यू ठीक है थैंक सर, यू ओके, नमस्ते सर। थैंक यू। सर बहुत बहुत ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम, नमस्ते, थैंक यू थैंक यू सर। सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यस अविनाश। Yes, ma'am. Yes, now you can start your ओके मैम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ हाँ किसी हाँ, के लिए। वो मल्टीपल शेयरिंग है, आप शेयर करिए। Is the screen visible, ma'am? Yes, yes, it is visible. Okay, so a very good afternoon to each and every one of you sitting behind their screens. मैं चाहूँगा कि ये फिलहाल जो अब से जो सेशन हो इंटरैक्टिव हो, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स फिलहाल हैं उनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, और प्लीज़ आप अपना सहयोग दें। फिलहाल
मेरी आवाज क्या सब तक जा रही है? प्लीज जस्ट लेट मी नो। Yes, yes, you are perfectly audible and your screen is visible. ओके, सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, जो कि आज हम मना रहे हैं, और जैसा कि सर ने हमें पहले ही बताया है, आज जो थीम है, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रखी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, वो है ओनली वन अर्थ। और ये एक जनरल नॉलेज की चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के प्रोग्राम, जो 50 साल से चला आ रहा है। पहली बार ये 1972 में स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इस बारी का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो होस्ट कर रहा है स्वीडन। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो थीम रखी गई है वो ओनली वन अर्थ है, जिसका स्लोगन है लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विथ नेचर। आप लोग अभी लेक्चर सुन रहे थे सर का, और जैसा कि आप सामने क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, व्हाई डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? फिलहाल मुझे दिख रहा है 59 पार्टिसिपेंट्स हैं। क्या कुछ कोई भी मुझे बता सकता है कि मतलब एग्जैक्टली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? Hello. Hello, sir. Yes, जी yes. जी। I think so. We are very busy in our daily life. So it is a day when we. It is a day when we. For us to realize our responsibilities towards environment, like whatever we are getting from environment, we have to give back something to, like we have to save environment. So I think it is a day for realizing our responsibilities toward environment. यस, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? It's Astha Singh. ओके आस्था, थैंक यू वेरी मच आस्था, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और मैं फिलहाल आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये चीज बताना चाहूंगा, जिसकी वजह से आप शायद एक ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाए इस पर्टिकुलर चीज को। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? इसको सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसा कि अभी हमारे एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। किस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम? लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, उन्हें ये बताना कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे डिग्रेड हो रहा है, और उस डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाना और लोगों को एनकरेज करना कि वो इस डिग्रेडिंग जो सिचुएशन है एनवायरनमेंट की, उसमें अपनी भागीदारी दें, अपना योगदान दें, ताकि हम दोबारा से जो है वो रिस्टोर कर पाए। और एक मैं आपके साथ फैक्चुअल डेटा शेयर करना चाहूंगा, आप इसे गूगल कर सकते हैं। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से, जिस हिसाब से एनवायरनमेंट फिलहाल डिग्रेड हो रहा है, अगर इसी दर से डिग्रेड होता रहा तो 2030 क्रॉस करते ही ये चीज इरिवर्सिबल हो जाएगी। फिलहाल हम इस स्टेज में हैं 2030 तक कि हम जो चेंज आया है एनवायरनमेंट में उसे हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसी दर से ये चीजें चेंज होती रही तो 2030 के बाद इट विल बिकम इम्पॉसिबल टू रिटर्न बैक। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनक्रेडिबल अर्थ। और इनक्रेडिबल अर्थ से मेरा मतलब आप कुछ मैं फोटोज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, बहुत सारी जगहों पे इस तरीके की फोटोज देखी होंगी, वाइल्ड लाइफ की फोटोज देखी होंगी, लैंडस्केप की फोटोज देखी होंगी, जो काफी हमारा खूबसूरत प्लैनेट है अर्थ, और जिसको हमने बना क्या दिया है फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप जो सेकंड फोटो देख रहे हैं, ऊपर की जो दूसरी फोटो है, ये फोटो एक जापान के पास साउथ पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड क्रिएट हो चुका है प्लास्टिक वेस्ट की वजह से। और वो आइलैंड का जो साइज है, आप सभी ने आई गेस नाम सुना होगा टेक्सास का। क्या कोई मुझे बता सकता है टेक्सास कहाँ पे है? टेक्सास यूएस में है। जी,
टेक्सास यूएस में है, और जो सेकंड फोटो आप देख पा रहे हैं, ये आइलैंड जो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट से बना है, ये टेक्सास के एरिया से भी ज्यादा बड़ा है। ओके। और इस प्लास्टिक वेस्ट में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि जो मैंने आपके साथ बहुत ही कम फोटोज शेयर करी हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी फोटोज हैं जो आपके साथ शेयर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं की जा सकती हैं, जो कि काफी क्रूअल फोटोज हैं। जो हालत हो रखी है हमारी मरीन लाइफ की, और आप ये भी फैक्ट गूगल कर सकते हैं कि आई डिडंट एक्चुअली रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, बट 2045 के अराउंड, अगर जिस हिसाब से जो फिशिंग है और मरीन लाइफ जिस तरीके से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर इसी दर से करते रहे तो 2040 टू 45 के अराउंड हम मरीन लाइफ भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप अक्सर सुनते होंगे कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो बड़ी बड़ी शिप्स इस्तेमाल होती हैं, आप लोगों से मेरा एक और सवाल है, आपने नाम सुना है एवर गिवन का? किसी ने सुना है एवर गिवन? आई कैन सी 55 पार्टिसिपेंट्स आते। किसी ने नाम नहीं सुना एवर गिवन? बहुत ज्यादा न्यूज में था। एवर गिवन? ये चलिए ठीक है। एवर हाँ गिवन हाँ का जी। कोई कंटेनर शिप है आई थिंक। शान, आप प्लीज रिपीट करेंगे, आपने क्या कहा? इवन एक लार्ज कंटेनर शिप है। जी जी जी, एग्जैक्टली। ये एक लार्ज कंटेनर शिप है, जो कि इजिप्ट के पास एक कैनाल में फंस गया था। और इसी तरीके की बहुत बड़ी बड़ी कंटेनर शिप्स होती हैं, और अक्सर ही उसमें से आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, ऑयल स्पिलिंग। क्या आप फेमिलियर हैं इस टर्म से, ऑयल स्पिलिंग? शान, क्या आपने सुना है इस वर्ड को, ऑयल स्पिलिंग? नहीं, ऑयल स्पिन को नहीं सुना है। ओके, कोई और जिसने ऑयल स्पिलिंग सुना हो? ऑयल स्पिलिंग मींस जो ऑयल कंटेनर्स होते हैं, शिप जो ले जा रहे थे उससे गिर जाते हैं तेल, वो तो पूरे वाटर पे जो एक फिल्म क्रिएट हो जाती है ऑयल की ना। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। जैसा कि मैम ने बताया कि जो कंटेनर शिप्स होते हैं उसमें, जैसा कि आप जाने, उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और उन्हें पूरा का पूरा ओशन क्रॉस करना होता है, तो उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ डीजल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर गलती से वो शिप्स दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो पूरा का पूरा जो ऑयल है वो, और आप बचपन से ये देखते आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट आपने भी किया होगा, कि जो ऑयल है वो पानी की सतह के ऊपर तैरता है। तो जिससे होता क्या है कि ऑल ऑफ यू आर वेल फेमिलियर विद दैट, कि मरीन लाइफ भी जो है उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उस वजह से जो ऑयल की फिल्म एक्यूमुलेट होती है, उसकी वजह से होता क्या है, जो मरीन लाइफ है वो ऑक्सीजन डिराइव नहीं कर पाती है एटमॉस्फेयर से, और उस पर्टिकुलर रीजन की जो कोरल लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फोटोज में एयर पोल्यूशन, एंड आप एक और चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक जंगल में आग सी लगी हुई है। आई गेस कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 या फिर 2 साल पुरानी ही न्यूज है। एक जंगल था जिसमें बहुत ज्यादा स्केल पर आग लगी हुई थी। कोई मुझे बता सकता है? 2 थे एक्चुअली। कोई नाम बता सकता है मुझे? यही सारी जनरल नॉलेज की चीजें हैं, प्लीज। आई कैन सी 54 पार्टिसिपेंट्स आते। कोई बता सकता है मुझे? ऑस्ट्रेलिया में लगा था। एक यहाँ यूएस कैलिफोर्निया में भी था ना? जी, कैलिफोर्निया में। और जो ऑस्ट्रेलिया में दो भी सबसे हाँ। बड़े स्केल पर, जो सबसे बड़े स्केल पर लगे हुए थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप गूगल कर सकते हैं। एक अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में लगी थी आग, और एक साइबेरिया के जंगलों में लगी थी आग। और ये फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज गूगल पे भी चेक कर लीजिएगा। जो साइबेरिया के जंगलों में आग लगी थी, उस आग की वजह से जो फॉरेस्ट का एरिया डिस्ट्रॉय हुआ है, ग्रीस नाम सुना है आपने? ग्रीक? ग्रीस, यस, जी, कंट्री है। ये एक कंट्री, और इस कंट्री से भी ज्यादा एरिया का फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है उस आग से, साइबेरिया में। जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। और अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को एक पर्टिकुलर टर्म दिया हुआ है। उसे हम कोई मुझे बता सकता है कि हमने पढ़ा होगा 10th 11th 12th, हम पढ़ते रहते हैं। ऑप्शन Anyone? दो। अ, याद तो है लेकिन एग्जैक्टली नहीं याद है।
खैर मैम, मैं सीधा ही बता देता हूँ। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। ओके ओके। जी, लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। और आप सब इस चीज से वेल फेमिलियर होंगे कि ये जो लंग्स ऑफ द प्लैनेट है ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो स्पीशीज रहती हैं वो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में ही रहती हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो ब्राजील में होता है। और ब्राजील काफी ज्यादा एरिया कवर करता है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का। और कंटिन्यूअसली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के एक्सपेंशन की वजह से वो रेन फॉरेस्ट कट किया जा रहा है। और ये एक फैक्ट आपके साथ और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पर डे, मैं साल भर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में 150 स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं। अलग अलग तरीके की 150 स्पीशीज एक दिन में एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, कंप्लीट एक्सटिंक्शन एक दिन में। जो कि अगर आप एक दशक यानी कि आप एक डेकेड का अगर कैलकुलेट करें तो 10% जो स्पीशीज है वो लॉस्ट हो जाती है। जो स्पीशीज आज तक हम खोज भी नहीं पाए हैं वो स्पीशीज कंटिन्यूअसली हम लूज कर रहे हैं हमारी इन सारी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और इन सब चीजों की वजह से। फिलहाल आप कुछ फोटोज देख पा रहे होंगे। ये सैटेलाइट फोटोज हैं। और कुछ और फोटोज वगैरह आप सामने देख पा रहे होंगे। ये एक चेंज डिस्प्ले कर रहा है कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वही सेम लोकेशन की फोटो ली गई है और आप जरा देखिए क्या चेंजेस आए हुए हैं यहाँ पर। और ये काफी चिंताजनक है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट गिविंग मच अटेंशन टुवर्ड्स इट। ओके, सो क्या आप रीड कर पा रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? नो, ओनली प्लीज आइडेंटिफाई। जी, प्लीज आइडेंटिफाई। ठीक है। क्या आप मुझे बताएंगे तस्वीरें कहाँ की हैं? प्लीज पहचानिए। एक साइड कानपुर की है और एक साइड लखनऊ की है। चलिए मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ जिसकी आई गेस उससे आप तुरंत ही बता देंगे। अब बताइए कहाँ की फोटो है? लखनऊ। जी, ये फोटो है गोमती नदी लखनऊ की। ये हमारा खुद का शहर है। आप एक कंपैरिजन यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2011 में कैसी थी और 2015 में कैसी हुई। आप एक चीज बस गौर करिए कि किस रेट पर हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। ये और कहीं की बात नहीं, ये खुद के हमारे लखनऊ शहर की बात। जो हमारी गोमती नदी है वो किस दशा में है और कितना पोल्यूशन जो है वो हम डेली क्रिएट कर रहे हैं। ये एक मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको दर्शाने की कोशिश करी गई है कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके का था और हमने कैसा उसे बना दिया है। अ, आप फिलहाल स्क्रीन पर AQI क्या सब पढ़ पा रहे हैं ये? यस सर। जी, आप अब आप मुझे ये बताइए व्हाट इज AQI? एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी, बहुत बढ़िया, एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैं चाहूंगा सब अपने स्मार्टफोन से जो है ये लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे। प्लीज गूगल करिए लखनऊ का AQI कितना है और प्लीज लेट मी नो। मुझे अभी फिलहाल नहीं पता कि फिलहाल का करंट AQI क्या चल रहा है, लेकिन आप प्लीज मुझे बताइए AQI क्या है लखनऊ का। 335 अप्रॉक्स। और उसके ऊपर एक आई गेस रेड में नोट भी लिखा हुआ होगा कि प्लीज स्टे इनसाइड और समथिंग लाइक दैट। यस। जी, तो ये आप डेली बेसिस पर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को ट्रैक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। और ये डेली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जो कि जो ठंड का समय होता है, जो दिवाली का टाइम आता है जब हम क्रैकर्स वगैरह बर्स्ट करते हैं तो ये 500 के भी ऊपर चला जाता है।
तो फिलहाल हम और एक और चीज आप ये फैक्ट भी गूगल कर सकते हैं कि टॉप 20 या फिर 30 पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया की ही 15 सिटीज आती हैं। यानी कि टॉप 20 और टॉप 30 पोल्यूटेड जो सिटीज हैं पूरे एंटायर वर्ल्ड में, उसमें से 15 सिटीज हमारी खुद की हैं, इंडिया की हैं, इंक्लूडिंग लखनऊ। हम सब बात करते हैं कि दिल्ली बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, दिल्ली बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, लेकिन अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स डेली ट्रैक करें तो आपको ये पता चलेगा कि समटाइम्स लखनऊ, समटाइम्स का काफी बारी मैंने ये चीज नोटिस करी है कि लखनऊ कहीं ज्यादा गुना ऊपर चला जाता है दिल्ली के। Yes, you are correct. Many times I also seen it. ये मैम। सो अब सवाल ये उठता है कि व्हाट कुड बी डन टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। हम कर क्या सकते हैं? हमें जो हमारे पास कोई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है जो कि हम इन्वेस्ट कर पाए। व्हाट आई पर्टिकुलरली फील इज अगर हर इंसान बहुत छोटी छोटी चीजें करे तो भी हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है। उसके पहले मैं एक फैक्ट आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा जो कि रह गया था। इंडिया में जो 80% सीवेज वेस्ट है जो कि नालों से निकलता है, वो क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ डंप होता है? एनीवन प्लीज? रिवर्स में। जी, रिवर में, और वो भी पर्टिकुलरली गंगा नदी में, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। 80% सीवेज गंगा में डंप होता है। खैर, व्हाट कुड बी डन टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर कुछ देख पा रहे होंगे। प्लीज अगर कोई भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है एग्जैक्टली ये क्या चीज है यहाँ पे तो प्लीज मुझे बताएं। एनीवन प्लीज? It's attached with the oxygen cylinder, something, a room which is attached with it. एलपीजी सिलेंडर। नहीं, एलपीजी सिलेंडर तो नीचे रखा हुआ है, उसके साथ क्या है वो? ये मोबाइल रेस्टोरेंट है। जी जी मैम, ये एक फूड स्टॉल है, ये एक फूड स्टॉल है। और प्लीज आप सब ऑनेस्टली, आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्लीज खुद से ऑनेस्टली ये सवाल पूछिएगा, ये काम कितने लोग करते हैं? आई कैन गारंटी कि बहुत कम ही लोग करते होंगे। हम अक्सर फूड स्टॉल्स पे खाना खाने तो जाते हैं, बट जो प्लेट्स होती हैं, 4 कदम की दूरी पर डस्टबिन होता है, बट हम नहीं जाते, हम वो चीज वहीं ड्रॉप कर देते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इतना इनिशिएटिव लेते होंगे कि वो 4 कदम चल करके जाते हैं। और ये कोई मैं जितनी भी अभी तक मैंने प्रेजेंटेशन में बातें करी हैं, ये कोई नई बातें नहीं है। शायद मुझसे कई गुना ज्यादा आप जानते होंगे, जो आप लोग जितने भी अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हम अपना इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं। और वो क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हम केयर ही नहीं करते। फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर कुछ आइकन देख पा रहे हैं, और क्या मुझे कोई बताएगा कि आप इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? क्या मैं डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? सर इलेक्ट्रिसिटी। जी, इलेक्ट्रिसिटी। आपने अक्सर सुना होगा जब भी एनवायरमेंट डे की बात होती है तो लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बचाइए, इलेक्ट्रिसिटी बचाइए, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बचाइए इलेक्ट्रिसिटी? ये कभी आई गेस बहुत रेयरली कोई बात करता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों बचाएं। आप में से कोई बता सकता है कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी बचानी क्यों है? प्लीज, 47 लोग हैं, आप प्लीज मुझे बताइए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम बहुत वेरियस वेज यूज करते हैं, जैसे कि कोल बर्न करते हैं, वो एनवायरनमेंट पे एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट